unemployment in Indian economy. In spite of getting degrees from reputed colleges, the students are not able to land up into good paying jobs. पहली बात तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने कोई कोर्स खरीद लिया, उनके माइंड में सिक्योरिटी आ जाती है कि चलो मैंने exactly, yes. अब तो मेरे से घर हो ही जाएगा. Exactly. वो मुझे नहीं लगता कि आपको जब तक इतना एफर्ट आप नहीं मारोगे जी वो तब तक नहीं हो पाएगा. कहता हूँ कि रिज्यूमे आपका जितना लेंदी और जितना बड़ा होगा उतने आपके चांसेस कम हैं. Exactly. Hello all, welcome to our podcast. Today we'll talk about something serious. Unemployment. Unemployment is a concern for every Indian household and is a greater concern for our Indian economy. So whenever a student passes out from college, he supposedly believes that when he will step into job market, he will get a high paying job. However, statistics say something else. There are like many colleges, many engineering colleges in India, out of which 15 lakh students pass every year. Out of those 15 lakh, only 25% students end up getting jobs that are correlated with their course degrees, while others either end up doing jobs in other sectors or they remain unemployed in their houses. So what is the gap that is leading to this unemployment, or why the students are getting job in other sectors while their degrees are from some other courses? Why? What is the gap that is leading to this? So today we have Baljit with us, who is a BTech, who is doing BTech from a reputed college. He'll shed light on the reasons behind that gap that why there is so much unemployment, why people are not getting jobs, and what is he doing to fill that gap, and how is he preparing to end up in a very good job. So before we proceed, please subscribe to our channel and like the video. Baljit, please introduce yourself to our audience. Hello everyone, my name is Baljit Singh and I am a second year BTech student from Bhagwan Parshuram Institute of Technology, currently pursuing in computer science. Okay. Specializing in data science actually. So Okay, very nice. So like we just discussed, Baljit, that there's increasing unemployment in Indian economy. In spite of getting degrees from reputed colleges, the students are not able to land up into good paying jobs. So according to you, what are the reasons that are actually the reasons for the high unemployment? Yeah, I think right now, so the degrees are only like the starting point of everything. So मुझे लगता है कि degrees एक basically आप pay कर रहे हो इंस्टीट्यूट को आपको डिग्री देने के लिए, despite all that आपको खुद पर भी मेहनत करनी पड़ेगी. सो करेंटली मुझे लगता है कि आजकल जितने मैं अपने क्लासमेट्स देखता हूँ या जितने जनरली मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन का लैक लगता है मुझे कि हम उसमें काफ़ी पीछे रह गए हैं. ओके. एंड कंपनीज मेजरली खाली स्किल्स पे नहीं, मुझे लगता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप खुद को कितना अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे हो किसी के आगे, आप कितना अच्छे से एक चीज़ को प्रूव कर पा रहे हो. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको जॉब मिलती है. एंड स्किल्स आज के टाइम पे वो भी एक बहुत मेजर पॉइंट है. प्लस आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा. सो आई थिंक राइट नाउ एज ऑफ नाउ खाली डिग्रीज से काम नहीं होने वाला, क्योंकि डिग्रीज तो बहुत लोगों पे आज के टाइम पे, बट जॉब्स सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद को सही से प्रूव कर पाते हैं. चाहे फिर वो रिक्रूटर हो, चाहे वो कोई भी कंपनी का हेड हो, या कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो, आपको वहाँ पे खुद को सही से प्रेजेंट करना चाहिए. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, देन आपकी स्किल्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर देंगी, बट अप टू दैट एक्सटेंट कि आपको एक अच्छा ऑफर मिल जाए जो आप डिजर्व करते हो, या आपको लगता है जो आपके टाइम की अच्छी वैल्यू है, या प्लस आप कहीं भी आपको रिमोट वर्क के लिए जाना है, स्पेशली फॉरेन कंपनीज में, तो वहाँ पे तो वो सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत फोकस डालते हैं. जी. सो मुझे ये सब. So what are you doing? How are you preparing yourself for those soft skills? Because of course you are studying in college, you will get the degree. So is there any course or are there any activities that you are indulging yourself in for building those soft skills? Yes, currently apart from pursuing my degree, I try to spend about half an hour to 1 hour in communicating in English with my peers as well as my parents. Very nice. Majorly parents का तो आपको पता ही है, like उनसे try भी कर लो बात करने का, then थोड़ा सा awkwardness आ जाता है. जी. But majorly I try कि मैं अपने जितने मेरे classmates हो गए या जितना भी मैं लोगों से बात करता हूँ, I try to speak them in English. Okay. एंड विद दैट कि आप इतना डेली इंकलकेट कर लो बेसिकली अपनी डेली लाइवलीहुड में. अगर आप डेली बातें करनी सीख गए एंड डेली आप जो आपके थॉट्स है, लाइक मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस करा है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि जब इंग्लिश पे बात करने का ट्राई करते हैं या कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, देन योर माइंड गोज ब्लैंक.
डोंट हैव एनीथिंग टू से एज ऑफ दैट। सो मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे आपको सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे रुक रहे हो जी, आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं जो आप सही से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे। हाँ सामने वाले को नहीं आप बता पा रहे हो असल क्यों। जी जी सो इसको लेके मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी टैकल करने वाली चीज़ तो है, टाइम लगता है इस पे, बट आप एक बार इसे अगर हैबिट बना लोगे इसे अपनी लाइफ में तो आप कर लोगे। जी सो उसके साथ साथ मैं अभी करंटली अपने कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहा हूँ इंटर्नशिप की। वेरी नाइस। आई एम ट्रेनिंग इन मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी एज ऑफ नाउ। ओके सो उसमें वी आर गेटिंग ट्रेन ऑन टू मॉडलिंग डेटा मॉडल्स Okay. एंड बेसिकली मेरी डेटा एनालिसिस जितनी डेटा साइंस की फील्ड है तो उसमें हमें डेटा मॉडल्स पे ट्रेन करना होता है एंड हमको बेसिकली जितना डेटा रिट्रीवल का पार्ट होता है कि आपको एक डेटा सेट दे दिया गया है जी उसमें से आपको डेटा रिट्रीव करना है जी जी तो वो सब करना है। एंड साइड बाय साइड हमारी ट्रेनिंग में जितना भी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है वो भी इंक्लूडेड है। ओके सो वो भी अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर का वो सेशन चलता है हमारा जी एंड 1-on-1 इंटरेक्शन होता है हमारे ट्रेनर के साथ। सो Very nice. So I've seen that there is a considerable shift in the preferences of students from commerce and management courses to IT course fields, like you're doing BTech. So according to you, what is the reason that has led to this shift? Why have students stopped taking commerce and management courses and now opting for IT course fields? आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड इन बैक इन कोविड टाइम क्योंकि कोविड पे ही सबसे बड़ा बूम आया था जितना भी ऐसी इंडस्ट्री थी हमारी आईटी इंडस्ट्री में। सो वहाँ पे अबाउट 2019 टू 2022 जितने भी ऑफर्स उनको मिल रहे थे वो सारे ऐसे थे लाइक ग्रैंड ऑफर्स, मतलब वो आई कैचिंग थे काफ़ी ज़्यादा। Okay. तो तब हम सब ने भी तभी देखा था, लाइक मैं भी 2022 के अराउंड ही मैं स्कूल से हुआ था, पास करा था मैंने। सो हम सबकी नज़रों में एक वही चीज़ थी कि भाई सीएसई में एक तो पैकेजेस अच्छे होते हैं Okay. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि आपको डाइवर्सिटी मिलती है वहाँ पे, आपकी फील्ड्स बहुत सारी हैं, Okay. आपको परस्यू करना है कुछ भी तो इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड Yes. एज वेल एज कि अगर आपको रिमोट वर्क में इंटरेस्टेड हो आप तो थोड़ा ऐसे है कि मुझे फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाना जी एंड मुझे कोई लुक्रेटिव फील्ड में काम करना है बट एट द सेम टाइम मेरे को रिमोट वर्क में भी इंटरेस्टेड हो जी तो वो भी एक आपके पास फैक्टर है, जी वो भी आप कर सकते हो। जी एज वेल एज मुझे लगता है कि आगे चल के स्कोप काफ़ी ज़्यादा है ओके इन फील्ड्स में एंड ये फील्ड्स ऑफ कोर्स हाई पेइंग तो है ही, जी उसके साथ साथ जितना भी आप सीखते रहते हो टाइम बाय टाइम आप टेक्नोलॉजी के टच में रहते हो जी तो गोइंग अहेड आपको लगता रहता है कि जितने भी टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं आप जो धीरे धीरे सीखते जा रहे हो जी एंड वेरियस कैन बी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग तो अभी रिसेंटली आया है। जी जी तो हाँ, तो ये सब सोचते हुए ही इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड और काफ़ी सिक्योर भी है जी इस मामले जी में। जी तो इसीलिए पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसी की तरफ टेंड हो जाते हैं कि चलो सिक्योर फील्ड है, Exactly. आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। जी जी सो मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है कि जी। काफ़ी मेजर क्राउड सीएसई आ चुका है। ओके मैंने भी कहीं ना कहीं यही पढ़ा है कि बिकॉज द स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट बाय द ईयर 2025 द IT sector is expected to grow by $13 trillion. सो कहीं ना कहीं स्कोप बहुत बढ़ गया है, बहुत स्कोप बढ़ गया है। तो पर कहीं ना कहीं हमें जितना भी मैंने आपसे समझा कि हमें साथ में इफ यू हैव टू लैंड अप इनटू अ गुड जॉब तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करती रहनी पड़ेंगी along with the degree because that is also important because जो आपके इंटरव्यू लेगा आपसे वो आपकी डिग्री की नॉलेज तो तभी चेक कर पाएगा if you are able to communicate to them, right? So being a good communicator is very important, very important. तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो कॉलेज है आपका दैट इज डूइंग सॉफ्ट स्किल्स का आपको वो कोर्स करवा रहे हैं, पर फिर जो आजकल बच्चे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचेस के पास जा रहे हैं, इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज कर रहे हैं, तो क्या आप उसमें समझते हैं कि मे बी आपका कॉलेज करवा रहा है वो वाली ट्रेनिंग बट जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज में लैक कर रहे हैं, तब भी आजकल बच्चों को फिर इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अलग से लेने पड़ रहे हैं उनकी डिग्री से। तो अगर ये चीज आपको क्या लगता है कि बाकी कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे? मेरे कॉलेज में भी इसी साल मुझे लगता है कि ये चीज़ आई है। अच्छा, दिस इज न्यू दिस इज रिसेंट। अच्छा, तो okay. पहले मेरे कॉलेज में भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन रिसेंटली मेरे कॉलेज के अलावा जितने कॉलेजेस हैं मैंने उनमें अभी तक नहीं देखा। एक तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा करिकुलम कम से कम 25 से 30 साल पुराना है। सो जो सब्जेक्ट्स हमें अभी पढ़ाए जा रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अराउंड रिवॉल्व भी नहीं करते। यस वो सारे काफी मुझे लगता है कि बहुत ही ओल्ड फैशन और बहुत मतलब ऐसे, नो ऑफेंस बट अगेन वही है कि जितने भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो आज के टाइम पे हमारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनके। जी जी
साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक तो कॉलेजेस की भी थोड़ी सी है ये कि उनका जितना करिकुलम है बहुत पुराना है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट कि जितना कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते हैं उसमें जो नॉलेज दी जाती है वो भी काफ़ी सर्विस लेवल की होती है। लाइक अगर किसी को खुद को स्किल अप करना है तो उसको खुद ही से, लाइक मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं यूडीमी पे कोर्सेज वगैरह वो सब करता रहता हूँ। साथ के साथ कुछ वेबिनार्स होते हैं, आपको सीईओ से ऐसे मिलने का मौका मिल जाता है, तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकते हो उनसे। तो यही मुझे लगता है कि किसी को अगर स्किल अप करना है, पहली बात तो आपके अंदर खुद होना चाहिए वो, क्योंकि अगर आप कॉलेज पे डिपेंड हो रहे हो उसके लिए, देन वो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि वो सही साबित नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर तो है ही लाखों बच्चे, अब किसके अंदर किसको कितना करना है वो थोड़ा उसे खुद से ही एफर्ट मारना पड़ेगा। सो हाँ, यही रीजन है कि कॉलेजेस का करिकुलम कह रहे हो, करिकुलम एक तो बहुत पुराना हो चुका है उनका, दूसरा ये है कि जो स्टडी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, टेस्ट जैसे ऐसे होते हैं हमारे, वो भी मुझे लगता है कि अभी काफी एफिशिएंट नहीं है। सो हाँ, तो अगर आपको स्किल अप करना है तो आपको खुद ही थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, आप कॉलेज प्रोफेसर्स के अंदर थोड़ा बहुत उनकी गाइडेंस के अंदर काम कर सकते हो, बट मेजरली मैंने ये देखा है कि जितने भी क्राउड होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है इस सब में, क्योंकि वो सारे फ्रंट पे आके बोल नहीं पाते, exactly, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जी, so there's a quick tip from Baljeet's conversation here that the Indian education system lacks because the curriculum is not matching with the evolving needs of the market. The technologies are changing, the needs of the market are changing, the market is evolving. So it's very important for the students to learn themselves. The course is one thing, the degree is one thing, but they need to learn the evolving needs of the market and keep up by that what new technologies are evolving. Also, they need to upskill them. They need to develop those soft skills in order to end up getting good job. So thank you, Baljeet. I also learned something new today, that the education system is somewhere lacking because the curriculum is not matching with the evolving needs of it. So where are you doing in your internship right now, or are you preparing for doing your internship? Yeah, as of now, I'm preparing for an internship. I don't have an internship right now. Okay. I am getting a training for the internship in machine learning and cyber security from my college only. Okay. So college में ऐसे ही बोलते हैं कि अभी सेकेंड ईयर हमारा जस्ट खत्म हुआ है, थर्ड ईयर में आऊँगा। सो सेकेंड ईयर के एंड एंड थर्ड ईयर की स्टार्टिंग का जो बीच का गैप होता है महीने का या ढाई महीने का, उसमें मेजरली कॉलेज टाइम देता है कि आप खुद से स्किल अप करके आप इंटर्नशिप ग्रैब करने का ट्राई करो। बट हमारे कॉलेज ने हमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है उसके लिए कि आप खाली मत बैठो 2 महीने। अच्छा, ठीक है। जो सेमेस्टर ब्रेक आ रहा है उसमें स्किल अप तो करो ही करो साथ, बट कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस खुद कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प से कर लो। तो एक वो चीज भी चल रही है। वेरी नाइस। साथ के साथ सॉफ्ट स्किल्स तो ऐसी हैं, देखो अगर आप खाली कोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपने पहली बात तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने कोई कोर्स खरीद लिया, उनके माइंड में सिक्योरिटी आ जाती है कि चलो मैंने खरीद लिया अब तो मेरे से हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। वो मुझे नहीं लगता कि आपको जब तक इतना एफर्ट आप नहीं मारोगे वो तब तक नहीं हो पाएगा। जी। सो ऐसा भी है कि मैंने देखे हैं काफी, मेरे मेट्स वगैरह भी हैं, ये कोर्सेज तो काफी हैवी, जैसे मैं अगर बोल लूँ गीक्स फॉर गीक्स के भी कोर्सेज आते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, 50-60,000 के भी आते हैं, बट कंप्लीशन उनका फिर वही 15% हो गया, 10% हो गया, और ये 6 महीने हो चुके हैं। सो वही है कि अगर आप जब तक करोगे नहीं तब तक वो आपका कोर्स जैसा है वो आपको बेनिफिशियरी साबित नहीं होगा। सो अभी एक तो मेरा पार्ट ये चल रहा है कि चलो ट्रेनिंग तो हो रही है, बट स्टिल आई एम नॉट डिपेंडेंट फुली ऑन द ट्रेनिंग इटसेल्फ। आई एम ऑल्सो अपस्किलिंग माई सेल्फ, लाइक मैंने जैसे बताया कि मैं यूडीमी पे भी थोड़ा देख लेता हूँ, बाकी यूट्यूब तो खैर अभी सब पे ही है, थोड़ी स्किल्स वहाँ से ले ली। सो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड तो है ही, लाइक मैं थोड़ा वेब डेव आप पढ़ लो, स्टूडेंट्स वेब डेव में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ी जैसे स्किल्स हैं लाइक ML है, मशीन लर्निंग, वो अभी बहुत रिसेंट है क्योंकि उसमें अभी इंडिया में इतनी मेजरली इतनी जॉब्स नहीं है, काफी कम जॉब्स हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप होना होता है, तो सबसे पहले आपको मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए आपसे, लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो आपको आना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको कोई ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे हमारे पाइथन बोली जाती है कि मशीन लर्निंग के लिए काफी फेवरेबल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो वो आप पढ़ो। तो अभी मेरा बेसिकली पाइथन के ही जितने बेसिक्स कह लो, क्योंकि बेसिक्स आर द मस्ट, कि बेसिक्स आपके वीक पढ़ गए तो आप स्ट्रांग भी बनाते होगे आगे। सो मैं पाइथन अभी लेके चल रहा हूँ साथ साथ, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहा हूँ एंड ट्रेनिंग। सो अभी तो फिलहाल इतना ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। नहीं, काफी है,
हाँ अच्छा, एक और चीज मैं पूछ रही थी बलजीत, जैसे आर दी स्टूडेंट्स वेल वर्स्ड विद द प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर इन दे विल बी फाइंडिंग द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स लेटर, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट इज ऑल्सो अ गैप, दैट द नॉलेज इज नॉट देयर दैट वेयर टू फाइंड जॉब्स, कि लिंक्डइन है, इंडीड है, वी नीड टू prepare a good resume and then post it there so that the recruiters are able to approach us. क्या इस पे भी हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं कि हमें कहाँ से जॉब मिल सकती है, या हमें कैसे रिज्यूमे बनाना है अपना, इस पे है कुछ गाइडेंस? हाँ, इस पे कॉलेजेस मेजरली आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि गाइड करते हैं, बट हाँ कॉलेजेस सेमिनार होल्ड करवा देते हैं उसके लिए कि आपको इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करनी है, आपको रेज्यूमे, फॉर श्योर रेज्यूमे इज एवरीथिंग। मैं तो ये बोलता हूँ कि रेज्यूमे आपका जितना लेंदी और जितना बड़ा होगा उतने आपके चांसेस कम है। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे तो मैंने वो भी देखे हैं, कुछ एआई मॉडल्स आ चुके हैं जो रेज्यूमे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट देते हैं बेस्ड ऑन कि आपने कैसा ग्रामेटिकल एरर आ गया मान लो, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। जी जी। सो एक तो वो भी है, दूसरा कि आपका रिज्यूमे होना चाहिए शॉर्ट एंड कंसाइज ऑलवेज, कि आई कैचिंग हो। बिल्कुल, आपने आपने जितने प्रोजेक्ट्स करे हैं, आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है, तो वो आपके हाइलाइट्स होने चाहिए, लाइक वो ऐसे होना चाहिए कि यार रिक्रूटर देखे, उसको मेजर दिख जाए कि आपने क्या करा है 4 सालों। जी जी। सो हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लेके वेल वर्स्ड नहीं, तो हाँ वो भी है, क्योंकि आज के टाइम पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि अगर हमें स्किल्स आ रही हैं तो हम अप्लाई कहाँ करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ रिलायबल हैं, कुछ अनरिलायबल हैं। तो हाँ, अभी कॉलेजेस तो इस मामले में कुछ नहीं बताते, वो हमें यही बोलते हैं कि जितने हम आपको दे पा रहे हैं, लाइक हम जो आपको ऑफर्स दे रहे हैं या हमारे पोर्टल के थ्रू जितनी चीज़ें आ रही है उस पर जाओ। बट वो फिर वही लगता है कि आप डिपेंडेंट हो गए एक तरीके से, आपको खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि बच्चे अभी भी ऐसे हुए हैं कि उन्हें अभी भी आइडिया नहीं है कि हम कहाँ, किस प्लेटफॉर्म में जाएँ, किस प्लेटफॉर्म में जाके हम अपनी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी इंटर्नशिप क्रैक कर सकें या अप्रोच कर सकें बेसिकली किसी को। अब सबसे स्टेपिंग पॉइंट यही होता है कि आप लिंक्डइन पे आईडी बना लो, उसमें प्रोफाइल क्रिएट कर लो, पोर्टफोलियो बना लो अपना छोटा एक, बट वो करके फिर आगे क्या ये कोई नहीं बताता। सो आगे लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स है, लाइक इंटर्नशाला हो गया, वहाँ पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा आता है इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए। एंड सबसे मैं तो यही बोलूँगा कि जो मैं भी अभी फॉलो कर रहा हूँ कि आप रैंडमली सिर्फ पोर्टफोलियो बना के अगर जंप कर जाओगे किसी वेबसाइट इंटर्नशाला जैसे मैंने बताया, तो आपको चांसेस बहुत कम है। उससे बेटर है कि आप लिंक्डइन में पहले कनेक्शंस बनाने शुरू करो, और एक गिटहब होता है हमारे में, तो उस पे क्या होते हैं कि आपने कोड से ओपन सोर्स कोड होते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। तो आपने कुछ भी अगर प्रोजेक्ट पे काम करा तो आप दिखा सकते हो बाकियों को कि मैंने, चाहे वो कितना भी बेसिक हो। आप लोगों को ये भी लगता है कि मैंने तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बना दिया, मैं अगर इसे अपलोड करूंगा तो कौन ही देखेगा। पर दैट शोज कि हाउ डेस्परेट तो नहीं, वो गलत वर्ड हो गया, बट हाउ विलिंग यू आर टू शेयर कि आपकी नॉलेज कितनी, आप कितना दिखाना चाहते हो लोगों को। एग्जैक्टली। सो वो जितना एक्सपोजर आप खुद को नहीं दोगे तब तक तो मुझे लगता है जितने डोर्स हैं आपके लिए बंद ही रहेंगे। सो मैं लिंक्डइन पे कनेक्शंस एंड गिटहब पे कंट्रीब्यूशंस ये साइड बाय साइड करते रहो, देन ऑटोमेटिकली थोड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी एस्टैब्लिश कर लोगे पोजीशन कि हाँ ये है जो कंट्रीब्यूट भी करता है, करेक्शंस भी हैं। सो हो सकता है इन फ्यूचर रेफरल मिल जाए। सो ये चीजें बहुत साइड बाय साइड करके चलनी पड़ती हैं, जैसे लेके चलनी पड़ती है। तो हाँ, ऐसे करना पड़ता है। सो देयर इज वन मोर लर्निंग कि कहीं भी इफ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, रिज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन टू योर रिक्रूटर। सो रिज्यूमेस शुड नेवर बी लेंथी, 3, 4, 5 पेज नहीं, there should be 1 page crisp and concise information highlighting your greatest achievement, जो आपको वो जॉब के लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपके रिक्रूटर को लगे कि जो आपने अचीव किया है is correlated to the job role that they are offering in that company। तो वो वैसे एक रिज्यूमे बनाना पड़ेगा आपको। ऑल्सो जस्ट नॉट रिलाई ऑन द स्टूडेंट पोर्टल, जो आपको कॉलेज की तरफ से एक पोर्टल होता है जहाँ पे दे बेसिकली post the internship or job opportunities. Seek it for yourself. It's your life. You need to do hard work for it. You need to create your profile on LinkedIn and add people there. Create your network. Create a good network and then apply for more and more jobs. So ताकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपका वो बढ़ पाए आपका। लाइक ही सेड, गिटहब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हाईलाइट किया, वेयरइन यू कैन पोस्ट योर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कोड्स, जहाँ पे आप लर्न कर पाओगे, लोगों के शेयर्ड कोड्स भी देख पाओगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी थोड़ा अपग्रेड कर पाओगे अपनी टेक्निकल स्किल्स को।
सो ओके बलजीत, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। आप बहुत सारी लर्निंग्स दे रहे हो हमारी ऑडियंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये लैंडिंग जॉब है ये बहुत बड़ा स्ट्रगल बन चुका है, क्योंकि अवेलेबल जॉब्स कम है, लोग बहुत ज़्यादा है, और जो रिक्रूटर्स हैं वो बहुत डिमांडिंग हो चुके हैं। तो अब क्या आपको अपने कॉलेज में कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जब इंटरव्यूअर आए तो वो आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अब आप बस आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको बस इंटरव्यूज में बैठना होगा, राइट? और आपका आई थिंक 3rd ईयर में स्टेप इन करोगे आप, बस 1 साल के बाद आप फिर जॉब में जाओगे, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है कि बिकॉज रिज्यूमे बन गया, नाउ यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि कहीं ना कहीं वो आती है ना, रील्स आते हैं कि जहाँ पे बताया जाता है कि डोंट जस्ट दिस डिक्टेट योर about the things that you have written in your resume, speak something else, क्योंकि वो तो रिज्यूमे में लिखा ही हुआ है। तो उसके अलावा हम क्या बोले? हाँ, तो अभी तो नहीं, फर्स्ट ईयर में होता था ये कि फर्स्ट ईयर में इंटरव्यू की प्रिपरेशंस वगैरह करवाने के नाम पे हमारा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया था इन लोगों ने, कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम का, CS। सो उसके अंदर ये था कि उसके अंदर हमारे GD राउंड्स होते थे ऑन अ वीकली बेसिस। अच्छा, तो GD, हाँ, ये सब ग्रुप डिस्कस, एक टॉपिक ले लिया और उस पे बोल दिया कि डिस्कस करो। हाँ, तो ग्रुप डिस्कशंस होते थे, साथ में डिबेट्स भी होती थी हमारी। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है वो भी एक काफी फ्रूटफुल फैक्टर रहा है कि अभी थोड़ी सी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है। तो हाँ, वो भी करवाया था। कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है जब तुम बहुत सारे लोगों के साथ उनके व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करो एंड देन अपना भी एक व्यू पॉइंट आप जब एक अंडरस्टैंडिंग आती है ना कि आप जो बोलोगे वो लोगों को समझ में आएगा, और जो आपके ओपिनियंस है वो क्लियरली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो हाँ, एक कॉन्फिडेंस तो आ जाता है जी। सो हाँ, एक वो भी चीज़ थी। साथ में साथ मेरे को ये भी लगता था कि बेसिकली वही कि कॉलेजेस तो चलो करवा रहे हैं, वीकली बेसिस पे हो रहा है, वीक में 1 दिन हो गया, चाहे किसी वीक होता भी नहीं था। सो हाँ, करवाते थे, बट अगेन वही है कि बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लाइक महीने में 2 बार। सो अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैंने जैसे बताया कि थोड़ा कम्युनिकेट करना धीरे धीरे सीखो आप भी, और लाइक ये हैबिट बनानी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा वो है, लाइक अगर आप किसी को दोस्तों को बोलोगे ऐसे कि मुझे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में तुम्हारे साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो यही बोलेगा कि क्यों करना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्यों ऐसे, मतलब नीड चाहिए इसकी, ये तो अभी 4th ईयर की बातें हैं, ये तो क्लास पे जाके देखी जाएगी। तो प्रॉब्लम वही है कि जो क्राउड है वो अभी सिर्फ एक रैट रेस फॉलो कर रहा है कि हमको स्किल्स ही चाहिए, एंड वो भी स्किल्स ले लेते हैं, बट अगेन स्किल्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स जैसे नीश होती हैं, जिस होते हैं, लाइक पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सर्टेन स्किल्स ले ली हैं, आप पैकेजेस आप जाओगे तो आपको 16-17 LPA स्टार्टिंग में ही मिल जाए। बट ये चीज़ भी समझने वाली है कि आपकी जो वैल्यू है स्किल्स की वो भी विद टाइम ही आएगी। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करोगे और जाते ही आप रिक्रूटर को ये साबित कर दोगे कि भाई मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, आपको लगेगा टाइम। सो अगर तो आप सही रूट पे, लाइक सही वे में जा रहे हो, स्किल्स अच्छे से शो कर रहे हो, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी कैरियर अच्छे से कर रहे हो खुद को, तो विद इन अ ईयर आपको जो चाहिए, आपको जो डिजर्व करते हो आप, वो आपको मिल जाएगा। ओके। सो हाँ, वेरी नाइस। टेक अवेज फ्रॉम बलजीत कन्वर्सेशन है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन ये भी है कि हम लोग सेटल डाउन नहीं होना चाहते लेस पे। हमें लगता है कि एकदम से हमारी बहुत पे जो हमारी सैलरी है वो बहुत हाई हो जाएगी, एंड वी tend to reject jobs जो थोड़ा हमें कम पे कर रहे होते हैं। But it's very important for the candidates also to understand कि we need to prove ourselves with time. So if you see that the job has a role and that you fit well, it aligns with your interest, so take up that job on whichever pay that they are giving. It should be decent, but if it is less than your expectations, it's fine. Later when you will prove yourself, it will somewhere increase. Obviously you will get good in the end. So you need to prove yourself first. तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला बलजीत आपसे। हमें सीखने को मिला कि हमें कैसे अच्छा रिज्यूमे बनाना चाहिए, लिंक्डइन पे जाके नेटवर्क बनाना चाहिए, गिटहब जैसी कम्युनिटीज को ज्वाइन करना चाहिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स प्रिपेयर करना चाहिए, फिर कैसे हुआ कि हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर हम ये सब करेंगे तो जॉब मिले, ये निश्चित है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।